वेलकम बैक। मैं डॉक्टर शंकर सिंह सोलंकी आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं सोलंकी सर के इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास में। बीए पार्ट 1 इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट पेपर सेकंड बुक, हमारी चैप्टर है फिफ्थ, द होम कमिंग बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी is of a boy Fatik, a mischievous boy of 14 years old. He lives with his widowed mother and younger brother Makhan. He is the ringleader of all boys of his village. He entertains them daily with one mischief or the other. Thus he has become a nuisance to all the villagers. Makhan is a calm and quiet boy. He is a serious boy. He does not like the mischiefs of his brother. ये कहानी है एक शैतान बच्चे फटिक की, जो कि अपनी विधवा माँ और एक अपने छोटे भाई माखन के साथ एक गांव में रहता है। वो प्रतिदिन अपने गांव वालों को परेशान करता है नई नई शरारतों के द्वारा। वहीं उसका छोटा भाई माखन बहुत ही सीधा और सज्जन लड़का है। फटिक is now involved in a serious situation. He is afraid of his mother's temper. He sits on a sunken boat and begins to think over what he has done. It is at this time that a stranger comes up to him and inquires of him about the house of the Chakrabartis. Fatik gives him a vulgar reply and asks him to go and find out himself. At this time, a servant comes to him and takes him home by force. When the mother sees him, she scolds him for having beaten Makhan. This thing makes Fatik angry. He beats Makhan for having given a lie. When his mother tries to pull him aside, he pushes her also. It is at this very time the stranger whom Fatik has already seen drops in. He turns out to be his maternal uncle. Then there is a great rejoicing in the maternal uncle decides to take Fatik to Calcutta, for he does not want his nephew to remain ignorant, wild and disobedient. His mother favors this thing. फटिक हर लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व रहता है। एक दिन वो एक नाव पर बैठा हुआ है, तभी एक अजनबी उसके पास पता पूछते आता है कि चक्रवर्ती लोगों का घर कहाँ है। शैतानी में उसको उल्टा जवाब दे देता है और तभी देखता है कि एक नौकर उसको ज़बरदस्ती घर ले जाता है और वहाँ जाकर देखता है तो वो अजनबी व्यक्ति उसके मामा होते हैं। उसकी माँ उसकी शैतानियों के बारे में उसके मामा को बताती हैं तो उसके मामा कहते हैं कि ठीक है, इसे आप मेरे साथ कलकत्ता भेज दीजिए, इसकी सारी शैतानियाँ ख़त्म हो जाएंगी और अच्छे स्कूल में जब पढ़ेगा तो एक अच्छा लड़का बनेगा। फटिक गेट्स रेडी टू अकम्पनी हिज अंकल बिशंभर टू कलकत्ता. He is excessively eager to leave her mother. This thing distresses his mother a little. He gives away his fishing rod, big kite and marbles to his younger brother. When he reaches Calcutta, he finds that his maternal aunt considers him to be an unnecessary addition to the family. She remains quite indifferent towards him even when he is hungry for her love and sympathy and wants to please her by obeying her. She rebukes him every day. फटिक ने जब अपने मामा के साथ जाने की बात सुनी तो उसे बहुत अच्छा लगा। उसने अपने सारे मछली पकड़ने का धागा, कंचे सब अपने भाई की ओर फेंक दिए। ये देखकर उसकी माँ को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि एकदम से ये जाने के लिए कैसे तैयार हो गया। जब उसका मामा उसको कलकत्ता शहर ले जाता है तो देखता है कि उसकी मामी को उसका यहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो उसके परिवार में एक बोझ की तरह लग रहा था। वो अपनी मामी को हर तरह से खुश करने की कोशिश करता था, उनके हर आदेश का पालन करता था
और वो उसकी मामी सदैव उसके ऊपर नाराज होती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। While living at the house of his uncle, Fatik is like a bird in the cage. He longs for the life of nature. He dreams of his village home and wants to be back there. He remembers the glorious meadow, the river bank, the companions and other things, wants to return home. He remembers his mother also. He feels a kind of physical love and his teachers beat him mercilessly. He stands wistfully by the window and gazes at the boys playing on the distant roof. One day he requests his uncle to let him go back to his village, but he is advised to wait for the next holidays. When he loses his books, he is rebuked by her auntie, mercilessly beaten by auntie. He has a headache at night, so he fears lest he should suffer from malaria and be a source of trouble to his aunt. He lived out in vain. He lodges a report with the police. Fatik is brought back in an unconscious and feverish condition in the afternoon of the following day. His aunt does not fail to rebuke him as this time also. फटिक को कलकत्ता शहर बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। उसे मानो ये लगता था कि एक पिंजरे में उसे पंछी की तरह कैद कर दिया गया है और वो अपने गांव की चारागाह, बच्चों के साथ खेलना, खुले में घूमना सब याद कर रहा था। स्कूल में उसके टीचर उसे बेदर्दी से पीटते थे। एक दिन उससे किताबें खो जाती हैं तो वो इस डर से परेशान हो जाता है कि अगर वो घर जाएगा तो उसकी मामी किताबों के खोने की जब सुनेंगी तो उसे मारेंगी, और इस डर से वो घर से भाग जाता है। बारिश में भीगते हुए उसे बुखार आ जाता है और उसके मामा पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं। उसी दिन शाम तक पुलिस उसे घर छोड़ जाती है बुखार में परेशान। जब वो घर वापस लौटता है तो उसकी मामी उस पर बहुत नाराज़ होती हैं और डांटती हैं। फटिक गेट्स वेल, so he develops a very high Fatik gets well, so he develops a very high fever. He passes into a delirious state and the doctor reports that his condition is critical. While he is in the delirious state, Fatik mutters out many old and forgotten things from his first-hand experience. Bishambar sends for his mother. She comes just in time when her son is breathing his last. He passes away uttering the words, "Mother, the holidays have come." Students, चूँकि ये समरी है, मैंने इससे पिछले वाले पैराग्राफ में एक लाइन आपको बताना भूल गया। वो बार बार गांव जाने की जिद कर रहा था बीमारी में। उसके मामा ने उसको एक आश्वासन दिया कि जब छुट्टियां होंगी तो मैं तुम्हें घर छोड़ आऊँगा। और उस बीमारी में जब उसके मामा ने उसे डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि एक सदमे से गुज़र रहा है, इसे इसके पुराने माहौल में भेज दीजिए। तो बड़बड़ा रहा है, बुखार तेज़ है कि मैं घर कब जाऊंगा, छुट्टियां कब होंगी। उसकी इस हालत को देखते हुए उसके मामा उसकी माँ को बुलावा भेज देते हैं और जब उसकी माँ उसके पास आती है तो देखती है कि उसका बेटा फटिक आखिरी सांसें गिन रहा है और उसके आखिरी शब्द होते हैं कि अब माँ छुट्टियाँ हो गई हैं, हम घर कब जाएंगे। माँ, द हॉलीडेज़ हैव कम। माँ, छुट्टियाँ हो गई हैं, और वो अपना दम तोड़ देता है। स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपैथी भरी हुई, दर्द भरी कहानी थी ये, एक गरीब फटिक नाम के बच्चे की, जिसे आपने सुना। अब हम बात करते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स की। आपको पता है कि हमारा क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। पहला सेक्शन होता है हमारा वेरी शॉर्ट, जिसमें हमें छोटे क्वेश्चंस लिखने होते हैं। उसके बाद होता है हमारा सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस,
जिसमें हमें उससे थोड़े बड़े क्वेश्चंस लिखने होते हैं, और फिर लास्ट होता है हमारा सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। हम आपको क्वेश्चंस के बारे में बताएं उससे पहले मैं मिलाना चाहूँगा आपको इन लेक्चर्स को बनाने के लिए जो हमारी हेल्प करते हैं वो हैं हमारे कैमरामैन मास्टर आदित्य प्रताप सिंह सोलंकी। आदित्य जी, आपका मैं स्वागत करता हूं। ये हैं हमारे सुपुत्र आदित्य उर्फ डुग्गू, जो आपके लिए अच्छे से लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं, और इनकी सहायता के बिना ये लेक्चर्स को बनाना बहुत कठिन है मेरे लिए। तो इनको आप सभी थैंक यू बोलें। चलिए आदित्य जी, मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन नोट करें, हाउ वॉज फटीग ट्रीटेड एट स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट डिड फटीग रिसीव फ्रॉम हिज मैटरनल आंट इन कैलकाटा एंड व्हाट डिड इट लीड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, bring out the significance of Fatik's last utterance, "Ma, mother, the holidays have come." मैं सेक्शन बी की बात करता हूँ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, why did Fatik's mother send him away to Calcutta with her brother? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, point out the local color and atmosphere in the story. नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, sketch the character of Fatik as depicted in the Homecoming. ये क्वेश्चन हमारा लॉन्ग में भी आ सकता है। सेक्शन सी की बात करेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट अ नोट ऑन द एलिमेंट ऑफ पाथोस इन द होमकमिंग। ये उससे बेटर क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में है हमारा सेक्शन सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक नोट कर लीजिए, दो, What does Tagore say about a boy at the age of 14? इसी को दूसरी तरह से पूछ सकते हैं, Write a note on child psychology of an adolescent child as shown in the Homecoming. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What happened after Makhan had gone home crying? एक लास्ट क्वेश्चन और नोट कर लीजिए इसमें लॉन्ग में हमारा, जो कि इम्पॉर्टेंट है, Write a critical appreciation of the story The Homecoming. इसी को हम दूसरी तरह से पूछ सकते हैं, Critically examine the story The Homecoming by रविन्द्रनाथ टैगोर। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 5th कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ का। मैंने आपको फर्स्ट के बाद 5th चैप्टर दे रहा हूँ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए हम मिलेंगे कल। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, ये लेक्चर्स मैंने सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए बनाया है। अगर आपको लगता है कि ये अच्छे से रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्डिंग क्वालिटी डल है, वॉइस क्वालिटी डल है, एडिटिंग ख़राब है, तो आप इस पे ध्यान ना दें, क्योंकि ये लेक्चर्स किसी मूवी थिएटर के लिए या OTT प्लेटफॉर्म के लिए नहीं बनाए जा रहे हैं। ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए बनाए जा रहे हैं, और ना ही मैं कोई स्टार हूँ, मैं सिर्फ आपका टीचर हूँ, आपका बड़ा भाई हूँ, आपकी हेल्प के लिए लेक्चर्स बना रहा हूँ। हम मिलेंगे कल। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंग्लिश गुरु बाई SS सोलंकी।